درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ العظیم۔ جناب چیئرمین صاحب، آج ایک اہم مسئلے پر گفتگو ہو رہی ہے۔ الحمدللہ جتنے بھی ممبر ہیں، اقلیت والے ہیں، مسلمان ہیں، سارے سب کو یہ ارمان ہے کہ سویڈن میں اور نیدرلینڈ کے اندر جو قرآن مجید کی توہین ہوئی ہے اس کی مذمت کرنے کے لیے ہم کھڑے ہیں۔ جناب چیئرمین، یہ اللہ کا آئین ہے، جیسے ہمارے ملک کا آئین ہے۔ اللہ نے کائنات کو بنایا ہے۔ اللہ کا آئین، یہ کتابیں جتنے بھی ہیں، یہ گویا کہ ہر دور کے لیے آئین کے ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے فلاں مدت تک ایک آئین تھا، پھر اس میں اور مسائل آ گئے، اس میں اور زیادتی آ گئی، اس کے بعد اور مسائل آ گئے۔ اب جو ہمارا آئین ہے، اسی طرح آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام سے بعد دوسرے انبیاء، پھر صحیفے اور بڑی کتابیں 4 ہیں: تورات، انجیل، زبور۔ یہ کتابیں نازل ہوئیں اور اللہ کا یہ آئین تھا کہ ان کے مطابق انسان اپنی زندگی گزاریں۔ آخری کتاب قرآن کریم ہے۔ اس کے اندر پورے انسان کی جو زندگی ہے اس کے متعلق احکام ہیں۔ نہ اس میں رنگ کے بنیاد پر کوئی تقسیم ہے انسانیت کی، نہ نسل کے بنیاد پر کوئی تقسیم ہے، اور نہ کسی خطے کے اعتبار سے تقسیم ہے۔ اس کے احکام سب انسانوں کے لیے، وہ سارے احکام قرآن کریم کے اندر ہیں۔ یہ آئین ہے اللہ نے جو دیا ہے، اور آخری آئین ہے۔ اب اس آئین کی توہین کرنا مانا خدائی حکومت جو ہے اس کی جو توہین ہے۔ اللہ کے حکومت کی جو توہین کرے تو وہ اپنے کو خدا کا مخلوق کیسے وہ مانتے ہیں؟ اصل میں مسئلہ کیا ہے حضرت؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت چونکہ آخری کتاب ہے اور عقل کے مطابق ہے، اس کے آئین کے اندر سب کے لیے قوانین ہیں، اس کی وجہ سے دنیا کے لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں۔ یورپ کے اندر لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کے گانے والے، ان کے ناچنے والیاں جب قرآن مجید وہ پڑھتے ہیں اور وہ پڑھتی ہیں، ان کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو جاتی ہیں۔ اب ان کو یہ فکر ہوا کہ ہم کس طرح اس مسئلے کو کہ لوگ اسلام کے طرف نہ جائیں، کیسے اس کو بند کریں۔ ایک پروپیگنڈا انہوں نے شروع کر دیا ہے کہ اسلام میں دہشت گردی ہے، دہشت گرد مذہب ہے۔ دہشت گرد مذہب ہمیں کہتے ہیں، لیکن خود یہی عیسائی جنہوں نے لیبیا کو انہوں نے ختم کیا، دہشت گرد پھر بھی ہمیں مسلمانوں کو کہا جاتا ہے۔ عراق کو انہوں نے ختم کیا اور پھر دہشت گرد ہمیں کہا جا رہا ہے۔ اسی طرح کئی علاقے بوسنیا اور دوسرے، لیکن پروپیگنڈا یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر اور مسلمان جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں۔ لیکن جب قرآن مجید کو دیکھتے ہیں، پورے یورپ میں اسلام پھیلتا جا رہا ہے۔ فرانس کے اندر، پیرس کے اندر ایک ادارہ ہے مسلمانوں کا، جس کے اندر 40,000 سے زیادہ لوگ وہاں مسلمان ہوتے۔ پیرس کے اندر ایک عورت اپنے بچے کو کہتی ہے کہ چلو میں تمہیں مسلمان بنانے کے لیے لے جاتی ہوں، چلو مسلمانوں کا جو ہے وہ ادارہ ادھر چلے گئے۔ بچے کو کہا تم جاؤ مسلمان ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ تمہارا کوئی بڑا ہے تمہارے ساتھ؟ انہوں نے کہا میری والدہ ہے، باہر بیٹھی ہوئی ہے، والدہ کو بلاؤ۔ وہ آئی، تم نے اپنے بچے کو کہا ہے کہ مسلمان ہو جائے؟ اس نے کہا میں نے کہا ہے۔ تم مسلمان ہوتی ہو؟ کہنے لگی نہیں۔ اچھا، اس کو کیوں مسلمان بناتی ہو تم؟ کہا یہ ہمارے گھر کے سامنے مسلمانوں کا ایک گھر ہے، اس میں یہ ہے کہ جب اس کا بچہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے
माँ बाहर निकलती है, बच्चा माँ एक दूसरे से मिलते हैं, बोसे देते हैं, बच्चा चला जाता है, फिर जब दोबारा बच्चा वापस आता है इस प्यार के साथ। मैंने इससे अंदाज़ा किया कि इस मजहब के मानने वाले अपनी माँ को ओल्ड हाउस में नहीं छोड़ेंगे, इसकी खिदमत खुद करेंगे। इस वजह से मैं कहता हूँ कि मेरा बच्चा मुसलमान हो, बाद में मेरी इज्जत हो। अब उसको कैसे रोकें? रुकता तो नहीं है, फिर ऐसे कुरान मजीद की तौहीन करेंगे, नौजुबिल्लाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फिर ये मुसलमान जज्बात में आएंगे और इनके लिए लड़ाई के लिए तैयार होंगे और फिर कहेंगे हम उनको, देखो ये हैं दहशतगर्द। हम नहीं कहते हैं कि मुसलमान दहशतगर्द हैं, ये एक साजिश है। तो कुरान करीम अमन का दर्स देता है, सब लोगों को हुकूक, और हजरत अपनी जगह पे जानवरों के हुकूक भी बता दिए हैं इस्लाम ने, और हैवानात के, दरख्तों के। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी दरख्त को नाहक कोई काटता है, इसका भी उससे पूछा जाएगा कि तुमने इस दरख्त को क्यों काटा है। आप मदीना मुनव्वरा में जा रहे हैं, इसी इस्लाम के अंदर हुकूक हैं जानवरों के। ऊंट सामने आता है, उसके आंखों से आंसू बह रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब गए और उस पर हाथ रखते हैं, उसके कोहान पर, कानों पर। फरमाया इसका मालिक कौन है, किधर है? तो मालिक आया, कहा ये ऊंटनी या ऊंट है, वो शिकायत कर रहा है इस बात की कि तुम इससे काम ज्यादा लेते हो, चारा कम देते हो। मियाँ जिसमें जानवर के हुकूक हो, अल्लाह जानता है वो मजहब दहशतगर्दी सिखाएगा। मलका बरता इसका जो है, कैसर की बीवी मर जाती है और उसके जनाजे के साथ एक बांधी जाती है, चलते हुए रास्ते में वो थूकती है तो उसके जुबान को काटते हैं, बेअदब, मलके के जनाजे के साथ तू थूकती है रास्ते में। और जब कुरान मजीद आया, यही किताब आई, इस्लाम आया, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसा आदमी, एक मसला उन्होंने बयान किया कि देखो, और तो पहले हकमार थोड़ा लिया जाता था, आजकल तुम ज्यादा हकमार लेती हो, आइंदा कोई ज्यादा हकमार लेगी तो मैं उसका बैतुल माल में दाखिल कराऊंगा। कामत इमरातुन सौदाओ सफ़ाउल खद्दैन, एक औरत खड़ी होती है जिसके गाल चिमटे हुए हैं, सिया फाम है, वो कहती है महलन या उमर, अमीरुल मोमिनीन जरा रुक जाओ, आप हमारे हुकूक के मुतल्लिक क्या बात कर रहे हैं? कुरान करीम में है कि अगर तुम्हारी शादी है, पहले लोग शादी करते हैं रिश्तेदारों में, चचा की लड़की है किसी की, फिर दुबई चला गया और पैसे हुए, फिर कोई शिकिल सूरत वाली मिल गई तो दूसरी शादी की, पहले वाले को तंग करके वो पैसे हक मार के वापस लेते हैं। तो कुरान करीम ने कहा ऐसा नहीं करो, व आते तुम एहदाहुन्ना किंतारन, अगर तुमने किसी को सोने का ढेर दिया है हक मार में, अब तंग करके वापस न लो। अब वो औरत कहती है सैयदना उमर, कुरान मजीद कहता है बात है तुम एहदाहुन्ना किंतारन, सोने का ढेर दिया है वापस न लो, आप हमारा हक कैसे मारते हैं? हजरत उमर कहते हैं माशाअल्लाह, फहमतिल अजूज मा फहमा उमर, बूढ़ी को देखो कैसे मसला इसने समझा है। इस्लाम दहशतगर्दी वाला मजहब होता है, ऐसे बोलने की इजाजत देता। ओहद के मैदान में एक शहीद होता है सहाबी, उसकी दो बेटियां हैं, बीवी है। ये अरब लोग, हम क्या कहूँ, बलोच और पश्तून जो औरतों को हिस्सा नहीं देते हैं ना, शरीयत में उनका हिस्सा है, कुरान मजीद ने उनको हिस्सा दिया है, ये नहीं देते हैं इनको हिस्सा। मन कता मीरास वारिसी कता अल्लाह मीरासहु मिनल जन्नत, जो अपने वारिस का हिस्सा नहीं देगा, औरतों को हुकूक नहीं देगा, अल्लाह जन्नत का हिस्सा उसका काटेंगे उससे। तो वो एक औरत जो है रिश्तेदार आए जो शहीद हुआ, अब तक कुरान मजीद में हुक्म नहीं आया था मीरास का, वो रिश्तेदार आए सारा माल ले लिया। उस औरत ने कहा ऐसा नहीं करो, नहीं माने, दोनों बच्चियों को हाथ से पकड़ा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चली गई, या रसूल अल्लाह, इनका वालिद उहद के मैदान में शहीद हुआ है और ये मेरी दो बच्चियां हैं, इनके वारिसों ने सब माल ले लिया है, मेरे लिए भी कुछ नहीं छोड़ा, इनके लिए मैं इनको क्या करूं? आपने फरमाया कोई हुक्म नाजिल नहीं हुआ, बैठो। वो बैठ गई,
थोड़ी देर के बाद सूरत निसा नाजिल हुई, सूरत निसा मुकम्मल, यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम। कुरान मजीद में आया, मैं तुम्हें ताकीदी हुक्म करता हूँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, औरतों का भी हिस्सा है, इनको दिया करो। तो इस्लाम ने औरतों को भी इज्जत दी है, इनके भी हुकूक बताए हैं। गैर मुस्लिम है और वो नेशनलिटी उसकी इस मुल्क की है, इस्लाम के अंदर ये है, दिमाउहुम का दिमाइना, अमवालुहुम का अमवालिना, आराजुहुम का आराजिना, इनकी जान का वही हुक्म है जो एक मुसलमान की जान का है। अकलियत में जो भी किसी भी मजहब के नेशनलिटी यहाँ की है और मुस्तामिन है। अब आप बताएं कि हमारी इज्जत कुरान मजीद में है या नहीं? इज्जत है हमारे लिए कुरान मजीद, और कुरान मजीद की वो तौहीन करते हैं। चलो भाई, और तो नहीं हो सकता, इतना तो कर सकते हैं मुसलमान, इनका बाइकाट करें। असल में मसला होता है मुआशियात का। आप ताज्जुब करेंगे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुश्मन को कमज़ोर करना हो तो उसकी मईशत कमज़ोर होगी, दुश्मन खुद कमज़ोर होगा। जो भी हुकूमत मईशत उनकी कमज़ोर होगी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के वालों के लिए बद्दुआ की, अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहिम सिनीन कसिनी यूसुफ़ा, ए अल्लाह, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में कहत के 7 साल हुए थे, ए अल्लाह इन मक्के वालों पर ऐसा कहत लाओ ताकि ये हमारे खिलाफ न लड़ें और अपनी जो है इस्लामी कुव्वत मजबूत हो। और कई जिहाद इसके लिए हुए हैं। आसान है, उनकी बाइकाट करें, उनकी दवाइयाँ हैं, दूसरी चीज़ें हैं। मुसलमान 1.5 अरब कहते हैं, 60 ममालिक हैं हमारे लिए, और ये सब मुत्तफिक होकर, जैसे अजहर वालों ने कहा है, दूसरे ने, आपस में मुसलमान मुत्तहद हो जाएं। असल शरारत क्या है कि इस्लाम के फैलाने को रोकने के लिए उनकी ये साजिश है। इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब नहीं है, इस्लाम में परिंदों के हुकूक हैं, जानवरों के हुकूक हैं, जिन्नात के हुकूक हैं। जिन्नात ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि आप अपनी उम्मत को बताएं हमारे ये हुकूक हैं। आपने उनको बताया मुसलमानों को, यह काम तुम्हें नहीं करने हैं, ये जन्नात के हुकूक हैं। एक दफ़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, जिहाद के लिए जा रहे हैं, रास्ते में गए, एक परिंदा है, उसके छोटे बच्चे हैं। इस सहाबी ने ऐसे किया, बच्चे अपने चादर में रखे, यूं रखे और बंद किया। वो माँ आई इसके ऊपर, वो चिल्लाने लगी, ये है ये, इसी तरह इसको यूं खोला तो माँ इनके ऊपर बैठ गई। ये फिर ले आया उधर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यूं रखा, देख रहे हैं कि माँ बैठी हुई है अपने बच्चों के ऊपर। आपने फरमाया, देखो कितनी माँ मेहरबान है अपने बच्चों के ऊपर, अल्लाह इससे भी ज्यादा मेहरबान है हमारे ऊपर। आपने फरमाया, इनको जाकर जहां से उठाया है वापस माँ को इनको उधर छोड़ के आओ। मियाँ, परिंदों के भी हुकूक हमें इस कुरान ने बताए हैं, हमारे नबी ने बताए हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हम इसकी पुरज़ोर मजम्मत करते हैं और हम अपने इस्लामी ममालिक से गुजारिश करते हैं, और पाकिस्तान के हमें अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे यहाँ है, इंशाअल्लाह हर सूबों के अंदर इसी तरह होगा। अल्लाह ताला हमें अपने दीन पर कायम रहने की तौफीक दे। कुरान करीम की इज्जत हो। इस्लाम अमन का मजहब है, इसमें कोई दहशतगर्दी नहीं। ये इसको गुस्से में लाकर इस कहने के लिए कि मुसलमान ऐसे हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जनाब सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना फैज़ मोहम्मद साहब की बड़ी जामे और बड़ी मुफस्सल और मुदल्लल तकरीर के बाद मेरा ख्याल है बहुत कम गुंजाइश है। मैं बहुत